सुस्वागतम महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. थँक्यू महाराष्ट्र. So it's our day 3 in Hampi and right now we are doing our breakfast. So we have ordered this Indian paratha and one coffee. Let's test it. अच्छा तो लग रहा है देख के और देखता हूँ. अभी पानी भी यहाँ पे तो पानी भी पीना है. सो अभी का प्लान ऐसा है कि यहाँ पे सब निकलते टाइम ऑलमोस्ट 11:30 तक बच जाएंगे शायद से. और एक छोटा सा काम भी बाकी है हम लोग का. सो वो करके फिर हम लोग निकलने का प्लान कर रहे हैं. तो प्रोबेबली वी विल बी टेकिंग हॉल्ट इन सातारा. ऑलमोस्ट कितना आवर्स का जर्नी है? 9 आवर्स का जर्नी है. सो देखते हैं अभी जितना होगा उतना मतलब खींचना पड़ेगा. अदरवाइज़ मुंबई में जाने के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. सो ये है ब्रीफ प्लान. जो भी डिटेल्स रहेंगे वो तो ब्लॉग में मतलब बाइक पे जब भी आऊँगा तभी बताऊँगा आपको. सो फॉर नाउ मैं ब्रेकफास्ट कर दूँ. तो आप लोग के सामने अगर ब्रेकफास्ट रहेगा तो वो कर लो आप. सो गाइस वी आर लिविंग दिस प्लेस एंड दिस इज़ द रिसेप्शन ओवर हियर. And really nice hospitality from these people, and you can see the cafeteria area behind me. Hey guys, good afternoon. So behind me you can see the Virupaksha temple and we are leaving for Mumbai. So it's the time around 12 o'clock. We are leaving for Mumbai. So guys, time update and location update. It's 3:30 in the clock and we are in Bagalkot. भूख तो इतनी नहीं लगी है बट स्टिल पेट में कुछ तो डालना पड़ेगा. अदरवाइज राइडिंग विल बी हेक्टिक एंड मे बी सर दर्द भी कर सकता है. सो वी don't want to take any kind of risk and hence we have decided to take a break for a lunch. रिटर्न जर्नी हमेशा मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है बट स्टिल करना पड़ता है. Talking about Hampi journey, I personally enjoyed a lot this journey comparing with Mumbai to Malvanwala series. So really nice. And ये speed breaker जो दिखा नहीं. So we had our lunch over here at Republic restaurant somewhere in, I don't know the place name, but so far we have done almost like 180 kilometers or something. So we are leaving now. Hey guys. So we are back on the road and moving towards Kolhapur. From here Kolhapur is around more 3 hours journey. So basically it was around 166 kilometer the Google aunty showing to us. So guys, it's the time 7 and we have stopped for a small break opposite to SR petrol pump because the place name is we don't know. And from here Nipani is around 70 kilometers, so more 1.30 minutes we require to reach there. So let's go. So our plan may change because it's already 9. ज़्यादा स्ट्रेच करना भी अच्छा नहीं रहेगा because कल भी बहुत ट्रैवलिंग है. So we have took a decision to book a hotel at Kolhapur and we will be taking halt at Kolhapur.
instead of Satara. So सुस्वागतम महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. थँक यू महाराष्ट्र. Feeling good yaar, seriously. I mean I have never done this kind of ride before, and doing this for the first time, it was a kind of achievement for yourself. So right now I am feeling the same. So finally we reached our hotel and had our dinner. So कुछ अराउंड 9 या 9:15 बजे पहुंच गए थे हम लोग कोल्हापुर, और अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कवर किया 400 एंड सम किलोमीटर्स. तो काफ़ी अच्छा राइड हुआ आज का. एकदम तोड़ू फोड़ू वाला राइड था. सो एकदम ख़तरनाक कवर किया है. ऊपर से नाइट ड्राइव का एक्सपीरियंस भी मिल गया काफ़ी सारा. 1 लेन रोड था तो उसकी वजह से फिर थोड़ा दिक्कत हुआ, बट बाद में कोल्हापुर का हाईवे निपानी से कनेक्ट होने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आया हम लोग को. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अवर रूम लुक्स लाइक. और यहाँ पे मंदार सोया हुआ है, और यहाँ पे एक बेड है, बाथरूम वहाँ पे, और ये एंट्री डोर, और ये पीछे टीवी. सो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं हम लोग. आई विल मीट यू टुमारो. Hey guys, good morning and welcome back to another episode of Hampi series. So it's day 5 and we are leaving for Mumbai. Mumbai is around 360 plus kilometers from here, and expected time around 6, मतलब 6 घंटे शायद से लग सकते हैं. तो बैग पैकिंग हो गया ऑलरेडी. आज ये जो दिख रही है ना, ये लास्ट है. बाकी सबका तैयारी हो गया है. So right. So we are almost मतलब ready to ride. So पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर राइड शुरू होगा. काफ़ी अच्छा था ये सीरीज़, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला. और भी शायद से प्लान बन सकते हैं आगे फ्यूचर में. सो बी रेडी फॉर दैट. एंड मिलते हैं अभी नाश्ता ब्रेक, और डायरेक्टली बाइक पे मिलूँगा आपको. सो स्टे ट्यून्ड. So guys, good morning. We are leaving this hotel named as Tanwani Hotel. यहाँ से कराड़ is something around, I guess 55 kilometers is Karad. And this is the toll plaza we are crossing right now, and it's really wonderful feeling that we are going at home, and at the same time bad feeling because from tomorrow there is a regular schedule, मतलब work from home ये सब होने वाला है. और आयोडेक्स मलो और काम पे लगो, ऐसा वाला सीन है जो MS के भाई हमेशा करते हैं. सो this was a kind of feeling right now I am feeling. Satara is more 67 kilometers from here. So we have took a halt at special Satara Kandi Bede Hotel बैठक. चलो ले लेते हैं कुछ ना कुछ तो घर पे खाने के लिए है. These are the famous कंदी पेड़ा. और एक छोटा सा हॉल भी हो गया. अभी हम लोग सातारा में है. तो अभी हम लोग है पुणे से 100 किलोमीटर पीछे, और एक टोल नाका आ चुका है. टोल गेट 500 मीटर्स अवे. सातारा से कंदीपड़ी ले लिया है घर के लिए. नहीं तो बोलेंगे कुछ लाया नहीं है बेटा, इतना घूम के आया बट कुछ लाया नहीं बेटा. एंड दिस इज द भोगदा. इस एक बार ये टनल में जाने के टाइम. सो खम्बाट की भोगदा इज देयर, एंड you can see the beautiful भोगदा. थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अंधेरा लग रहा है.
Don't be the Bogda. This is the Khambhat की Bogda. मैं ये सेकेंड टाइम आया हूँ यहाँ पे, बट हर टाइम एक अलग ही मज़ा रहता है खुद का. दिस इज़ काइंड ऑफ वन थिंग. अभी यहाँ से पूना इज़ अराउंड 70 किलोमीटर्स अहेड. सो राइट नाउ वी आर एट महाराष्ट्र का चांदनी चौक, बिकॉज यहाँ पे भी पुणे में चांदनी चौक है. सो गाइस वी आर एट खोपोली एंड हैड आवर लंच एट दिस होटल श्री समर्थ कृपा. फ्रॉम हियर Mumbai is around 70 kilometers approximately. So it was our regular path, so won't be any problem or issue. Let's move. What is this, man? What a crazy public, yaar. Seriously, man. वो लोग डांस कर रहे थे वहाँ पे, इतना खतरनाक लग रहा था ना. राइड ख़त्म होने के लिए कुछ ही क्षण बाकी है और हम हैं ऐरोली ब्रिज पे, और 1-2 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा क्योंकि काफ़ी सारा राइड करके जो होता है सबका हालत बम्स पेन वो हो रहा है. So finally I have reached in my area. So काफ़ी अच्छा जर्नी था and thank you guys Mandar and Supriya for creating such a lovely memory in my life. So really thankful to both of you. It was fun. तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग ब्लॉग के एंड में, और अभी टाइम है ब्लॉग एंड करने के लिए. सो थोड़ा सा बातें करेंगे कि ये जर्नी कैसी थी और क्या एक्सपीरियंस था. सो हम लोग जानेंगे मिस्टर मंदार गांवकर जो कि पावलो आटा के ओनर है, उनसे जानेंगे उनकी राय और एक्सपीरियंस. सो मंदार, कैमरा ओवर टू यू. ये ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था. जैसे प्लानिंग किया था वो सक्सेसफुली हो पाया. हाँ, उससे भी अच्छा 1-2 डेस्टिनेशन उसमें बढ़ गए और वो हम्पी में जो देखने जैसा था बहुत था, बट प्लानिंग की ज़रूरत थी क्योंकि 2 दिन में अपने को पूरा कवर करना था. हम लोग ने मैक्स टू मैक्स जितने भी इम्पोर्टेंस मोन्यूमेंट्स थे, जो जगह थी हम लोग ने कवर किया. सनराइज जो था वो तो ऑसम था. सनसेट एकदम खतरनाक वाला देखने मिला, बट अनफॉर्चुनेटली कवर करने नहीं मिला बिकॉज रिस्ट्रिक्शन बता ही देता हूँ. ड्रोन फ्लाई करना इन हम्पी इज़ रेस्ट्रिक्टेड. सो डोंट ट्राई दिस. मतलब परमिशन लेके ही ट्राई करो अगर करना है तो. परमिशन मिलेगी नहीं क्योंकि ये वर्ल्ड सेकंड हेरिटेज है. यस करेक्ट. तो गलती से भी ड्रोन फ्लाई मत करना. सो यस दिस इज़ द रेस्ट्रिक्टेड एरिया. मतलब इसमें ऐसा कुछ अपने जीपीएस में बताएगा नहीं आपको, तो मे बी यू कैन फ्लाई योर ड्रोन. बट हम लोग अभी, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस बिकॉज वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड जोन है. सो वी शुड फॉलो द रूल्स and regulations whatever the हम्पी गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट जो भी फॉर्म किया है उन्होंने. सो विद दिस साइड गाइस ये जर्नी काफ़ी अच्छा था, और मुंबई टू मालवन से भी खतरनाक वाला जर्नी मेरे को लगा बिकॉज वी आर नॉट टू इन दिस जर्नी, दिस इज़ द थर्ड पर्सन. सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब फन एक्टिविटीज़ काफ़ी हुआ रूम पे आके वगैरह मतलब, और काफ़ी चिल एनवायरनमेंट था. सो मज़ा आ गया, और आई होप आप लोग को भी मज़ा आ गया रहेगा ये सीरीज़ देखने के लिए. सो गाइस विद दिस सेड let's end this vlog here, and please do like, comment and share this video if you like this video, and do subscribe if you are new on channel. So bye bye and take care guys. Bye.